बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के खुसूसी प्रोग्राम मेराज नबी के हवाले से ये प्रोग्राम है। मैं हाजिर हूँ नादिया राजपूत और आज मेरे साथ खुसूसी मेहमान जो मौजूद हैं, ज़फ़ीर सोहरवर्दी मौजूद हैं जो कि नात ख़्वाह हैं। इसके अलावा शाहिद जमाल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं और आज के दिन के हवाले से हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम गुजारिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़ीर सोहरवर्दी, उनसे कि वो एक खूबसूरत नात शरीफ जो है वो पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं DTVNN के दोस्तों का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तवस्सुस से मुझे यार फिर इसकी बबरकत रात में जो मुझे है वो इस नात शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं तमाम दोस्तों बाबों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक कलाम है वो जो शब मेराज के हवाले से है, वो बड़ा अच्छा कलाम है। अल्लामा पीर नसीरुद्दीन शाह गोलवी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है। तो आइए मैं समाइन की समातों की नज़र करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और ही कुछ है दो आलम की हवा आज की रात, और ही कुछ है दो आलम की हवा आज की रात। सैर को निकले हैं महबूबे खुदा आज की रात। सैर को निकले हैं महबूबे खुदा आज की रात। नूर ही नूर है, महकी है फिजाज की रात। नूर ही नूर है, महकी है फिजाज की रात। फर्श से ताबा फलक कौन गया आज की रात। फर्श से ताबा फलक कौन गया आज की रात। बख्श दूंगा तेरी उम्मती को मैं तेरे सदके, बख्श दूंगा मैं तेरी उम्मती को तेरे सदके। खुद मोहम्मद से खुद खुदा ने ये मोहम्मद से कहा आज की रात। खुद खुदा ने ये मोहम्मद से कहा आज की रात। बख्श दूंगा वक्त बेदार हो
جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، بخت بیدار ہو جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزاج کی رات، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزاج کی رات۔ اور آخر میں پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی مکتے میں کیا فرماتے ہیں کہ آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر، آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر، ان کا مشتاق زیارت ہے خدا جی کی رات، ان کا مشتاق زیارت ہے خدا جی کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہے محبوب خدا آج کی جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ اور ظفیر سہروردی، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے خوبصورت سما اسٹوڈیو میں۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو شاد بات رکھے۔ سب سے پہلے السلام علیکم سر، آپ کو تو خوش آمدید ہم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سر سب سے پہلے آپ نے تو کافی زیادہ، میں نے آپ کو اپنے پہلے بھی ایک پروگرام میں مدعو کیا، اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں سر شاہد جمال۔ تو سر آج میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آج کوئی کچھ نعتیہ شاعری جو ہے وہ اس دن، خصوصی دن کے حوالے سے اگر آپ اپنی ہماری GTVNN کی آڈینس، دیسی ٹی وی کی آڈینس کو اگر آپ سنائیں۔ جی میں پہلے ایک نعتیہ قطعہ جو کہ معراج کے حوالے سے ہے۔ خود حق کو آرزو رسالت مآب ہے، خود حق کو آرزو رسالت مآب ہے، یوں دل یہ روبرو رسالت مآب ہے، یوں دل یہ روبرو رسالت مآب ہے، معراج کو رہا میرے آقا کا انتظار، معراج کو رہا میرے آقا کا انتظار، اس کی نظر میں کوئے رسالت مآب ہے، اس کی نظر میں کوئے رسالت مآب ہے، خود حق کو آرزو رسالت مآب ہے۔ اب میں اس کے بعد آپ کو ایک اپنی نعت شریف پیش کرتا ہوں۔ کبھی یاسین کبھی کوثر کبھی طٰہٰ دیکھوں، کبھی یاسین کبھی کوثر کبھی طٰہٰ دیکھوں، کبھی حوریں کبھی جنت کا نظارہ دیکھوں، کبھی حوریں کبھی جنت کا نظارہ دیکھوں، شب ظلمت میں چمکتا ہوا تارا دیکھوں، شب ظلمت میں چمکتا ہوا تارا دیکھوں، صبح امید کی کرنوں کا اجالا دیکھوں، صبح امید کی کرنوں کا اجالا دیکھوں، روز کہتا ہوں کہ جاؤں میں زیارت کے لیے، روز کہتا ہوں کہ جاؤں میں زیارت کے لیے، کاش ایک روز حقیقت میں مدینہ دیکھوں، سبحان اللہ، کاش ایک روز حقیقت میں مدینہ دیکھوں، اور باریابی کی اجازت میرے آقا ہو جائے، باریابی کی اجازت میرے آقا ہو جائے، آپ کا روضہ اقدس کبھی کعبہ دیکھوں، واہ واہ، آپ کا روضہ اقدس کبھی کعبہ دیکھو، کبھی کعبہ دیکھوں، سبحان اللہ، اور شعر دیکھیں کہ شاید اس بار مجھے تیرا بلاوا آئے، شاید اس بار مجھے تیرا بلاوا آئے، اسی امید پہ قاصد کا میں چہرہ دیکھوں، اسی امید پہ قاصد کا میں چہرہ دیکھوں، شوق
तैबा की तरफ खींचे लिए जाता है, शौक तैबा की तरफ खींचे लिए जाता है। अपनी किस्मत को मैं हम दोषे सरिया देखूं, अपनी किस्मत को मैं हम दोषे सरिया देखूं, और मेरे सारे ही गुनाहों को बहा कर ले जाए, मेरे सारे ही गुनाहों को बहा कर ले जाए। तेरी रहमत का उमड़ता हुआ दरिया देखूं, तेरी रहमत का उमड़ता हुआ दरिया देखूं, और शौक बेताबी दिल और भी बेताब करे, शौक बेताबी दिल और भी बेताब करे। यही ख्वाहिश है कि बस नूर सरापा देखूं, यही ख्वाहिश है कि बस नूर सरापा देखूं। और शेर है कि कोई इब्लीस भला क्या मुझे भटकाएगा, कोई इब्लीस भला क्या मुझे भटकाएगा। सर पे जब रहमत आलम का मैं साया देखूं, सर पे जब रहमत आलम का मैं साया देखूं। और शायरी मुझको फ़कत इतनी ही रास आती है, शायरी मुझको फ़कत इतनी ही रास आती है। नात कहकर मैं दिले मुर्दा को जिंदा देखूं, नात कहकर मैं दिले मुर्दा को जिंदा देखूं। निखरे निखरे नजर आते हैं दिलो जहन मेरे, निखरे निखरे नजर आते हैं दिलो जहन मेरे। निखरा निखरा हुआ मैं अपना ही चेहरा देखूं, निखरा निखरा हुआ मैं अपना ही चेहरा देखूं। और मक्ता पेश ख़िदमत है कि जिसने कुरान पढ़ा गौर व तदब्बुर से जमाल, जिसने कुरान पढ़ा गौर व तदब्बुर से जमाल, मैं मकाम उसका सरे अर्श मुअल्ला देखूं, मैं मकाम उसका सरे अर्श मुअल्ला देखूं। कभी यासीन कभी कौसर कभी ताहा देखूं, कभी हूरें कभी जन्नत का नज़ारा देखूं। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त शायरी करते हैं सर। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में मैंने बताया कि मधु किया, और उन्होंने उस टाइम भी ये मुझे सुनाई थी, और अब दोबारा ये शायरी जो है वो सुनाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समा बांध दिया। तो इस बात पे मुझे एक शेर याद आया कि उसी का ये जलवा है चारों तरफ, हजारों निशान हैं हजारों तरफ, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो सर अभी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के दिन के हवाले से आप क्या बात कहना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे मिराजुन नबी के हवाले से आज के प्रोग्राम में DTVNN के नाजरीन से क्या बात शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेराज एक ऐसा मुजदा है हज़रत पाक का कि जो कि और किसी नबी या किसी रसूल के साथ पेश नहीं आया। ये अल्लाह ताला ने उनको ख़ास एक वदियत की थी, उनको बुलाया गया, चूँकि वजह तख्लीक़ कायनात जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने वो उसको पूरा करने के लिए ये जो था मेराज शरीफ में उनको बुलाया और मुलाकात उनका। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर ज़फ़ीर सहरवर्दी जी, हमारे लिए ये तमाम दोस्तों के लिए, वैसे तो बच्चे से लेकर बड़े तक मेराजुन नबी की शान और अजमत किसे नहीं पता, लेकिन इसी में हमें देखें, अब जब हुज़ूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए तो वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह के रोज़े कितने लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 6 माह थे ना, 6 माह के। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह उम्मत ये इतने रोज़े आपकी नहीं रख सकती। तो ये कहते हैं कि जाते जाते 9 मतलब वो ना 8-9 बार हुज़ूर सलाम गए, फिर 50 नमाजें थी, ये 5 हुई। तो अगर हम यही पैगाम मैसेज है कि अगर हम 1 माह के रोज़े भी ना रख सकें और 50-45 मतलब नमाजें हमें माफ़ हो गई हैं, तो उसमें से हम 5 नमाजें भी ना पढ़ सकें, तो फिर यही मैसेज है हम तमाम भाइयों बहन भाइयों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर सी है। तो इसमें जो है ना आगे रमज़ान शरीफ जो है वो मतलब आ रहा है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये पैगाम है कि रमज़ान शरीफ में कम से कम अपने ना खुशो और खुशी तरीके से रखें और खुद खूब इबादत करें इसमें। वो आगे फिर उसके बाद जो है नमाज है, वो तो बंदा नमाज तरावीहें रात को वो भी मतलब अच्छे तरीके से अदा करें, और अपने बहन भाइयों और घर वाले आगे पीछे पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। तो यही हमारे दीन इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु का बेसिकली मेराजुन नबी का यही पैगाम है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना वो क्या किया है, वो यही पैगाम दिया है कि बस। और देखें कि कुरान शरीफ में कितनी बार नमाज का जिक्र है, और हम सोचें कि सुबह से लेके हमने आज ये शाम तक हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आप जो है ना मैसेज यही है बहन भाइयों के लिए कि रोज़े और नमाज, इससे अपने
जो है ना वो लगाव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर सोहरवर्दी जी सर, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया आपका भी, बहुत पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, DNN चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें मदऊ किया, इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाल के हमें जो है ना इस प्रोग्राम में शिरकत की है। बहुत शुक्रिया आपका, दोनों मेहमानाने खुसूसी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस मौके पर मैं एक शेर कहूँगी कि किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे उतारे हैं हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। और इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। DTVNN देखते रहें, देसी टीवी USA देखते रहें, और इसके अलावा हमारा OTT प्लेटफॉर्म GTV फ्लिक्स, जहां 2000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है।